Okay, hi Tanmay, and welcome to this recording for your request project. Thank you, So sir. far the information that I've got from you is your name is Tanmay Srivastava, Yes, sir. location Delhi head office, department commercial electric vehicles, and you are in operations. Tenure 1 year and 4 months. Designation business operational officer. Your reporting manager is Mr. Naveen Chavla, and Yes, your sir. project title, yes, My project title is Rise Above the Noise. Rise Above the Noise. okay, Standing out, semicolon, standing out on social media. S- Out on, yeah, standing out on social media. okay. Who will be your key stakeholders? So key stakeholder will be with my team, Mr. Abhishek Mudgal. He is in sales. And what does he do? He is a sales development manager for North Region in CV. Sales development manager. Yeah. Okay. Who else? And mentor will be my Mr. Naveen sir and Ketan sir. And Mr. Ketan sir. Ketan full नाम क्या उनका? Ketan Girap. 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 गिरप. Yeah. और कौन है? मार्केटिंग से भी कोई है? No, sir. So these are your stakeholders. Yes, sir. Okay. Sir, Mr. Abhishek Mudgal. GAL. Mr. Abhishek. Sir, you have written above. Just आपको name change करना है. Mudgal. Gil है. Gal है. GAL. GAL. जी. मुदगल. जी. ठीक है. Okay. Now tell me, what is the value that your project brings to the table? So $1,600. ये प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? पहले वो करते हैं. क्या मिलेगा इस प्रोजेक्ट से? Why are we doing this project? So first of all, there will be a reach among the customers, and then sir, can I open my presentation for like? Yes, please do. Okay, let me. One second, let me give you the access to share. Yeah. Yes. हाँ जी करिए. Okay, so you can see the screen. हाँ. Okay, so Next. अरे ये बहुत तेज जा रहा है. आपको रुक रुक के एक स्क्रेच वो करके Okay, okay. करो. ठीक है Division सर. हाँ next slide. This is my division. NPX का मतलब क्या होता है? So the like I am from NPIAR AR region. Which region you belongs to? So you are from NPAIR. NPIAR. इसका full form क्या होता है? Auto Nippon. refinish. Yeah. NP Nippon. India auto refinish. Okay. Yeah. Yes, sir. Okay, great. I know Nippon now थोड़ा सा. Reporting manager, reason for participating. Next slide. So the project overview as well as the scope. So the vision is to make Nippon Paint's ultimate top coat products for a consumer brand by quoting brand visibility through social media platform. And basically these ultimate top coat products are the products which we sell in CV division, commercial electric vehicles. So we will be focusing on 2-3 products majorly, for which we will be pitching through the social media
platform for our existing and new customers. Okay, so can you copy paste the vision and send it to me? I'll put it in my this thing notes. Sure, Send sir. it to me in the chat. Sure, sir. So did you get? Yeah, I got it. I got it. Now send me the vision also. Well, sorry, mission need. Sure, sir. So automotive refinish industry is primitively channel driven or primarily channel driven. What would be the right word? Primitive means पुराने टाइप के हिसाब से चल रही है. हाँ सर, पुराने टाइप के हिसाब से चल रही है. So in today's time we are increasing awareness of each consumer in the market. It is important कि हम लोग उसकी visibility to create the visibility through the social media platforms also. Okay, so मैं दोबारा पढ़ता हूँ. Automotive refinish industry is primarily channel driven. Primitively channel driven. In today's time is increasing awareness of each consumer in the market. In order to create visibility. तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचते हो? सबसे पहले ये सवाल आता है. Sir, we sell Ultima products, value thin products. These two are the major products. नहीं तो ये क्या है? ये पेंट्स हैं क्या है? एक मिनट रुको, hold on. ओके, नेक्स्ट. तो अब ये ये जो आपका प्रोडक्ट है टॉप कोड, ये क्या प्रोडक्ट है? पेंट है? पेंट है सर, ये पेंट है. बेसिकली जो हमारे बस के ऊपर टॉप कोट्स लगते हैं क्लियर के बाद. के ऊपर मतलब कमर्शियल इलेक्ट्रिक बस जैसे बसेस होती हैं, जो हमारी बस जो इंडस्ट्रियल्स में बसेस होती हैं आपकी जैसे हम एग्जांपल ले लो, दिल्ली में डीटीसी ग्रीन बस हुई, डीटीसी जेबीएम्स के बस होते हैं. उसके ऊपर जो ये टॉप कोट्स लगते हैं, वी सप्लाई टू देम, दैट इज जेबीएम ब्लू. हम एक जगह अप्लाई करते हैं कस्टमर पे. नहीं तो टॉप कोट पेंट ही हो गया ना, बस जो ऊपर लगता है. हाँ जी. सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेंट है. जी सर. ओके, आप क्या करने वाले हो इसका? इसको हम पिच करेंगे सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू. अभी तक हम जो पिच कर रहे हैं वो पैनल के थ्रू करते हैं, 1-to-1 B2B बिजनेस में. बैक टू बैक उसमें जाते हैं और जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए पैनल देते हैं और पैनल के थ्रू हम लोग अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं. नहीं, मुझे नहीं समझ आया. पैनल क्या होता है? सर पेंट पैनल जो जिसके थ्रू वो देखते हैं कि ओके द कलर आर गेटिंग मैचेस, इट इज मैचिंग आवर रिक्वायरमेंट. नहीं, मुझे नहीं समझ आया. एक तो आपकी कंपनी वो देती है मशीन्स जिनमें अलग अलग कलर लटके होते हैं, जिनको 24 घंटे में एक बार घुमाते हैं. जी. ठीक है, वो हो गया. अब ये क्या है? क्योंकि पेंट तो उसमें होते हैं, ये क्या है? सर ये एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी कस्टमर्स पे हम जाते हैं और उनको ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें येलो शेड की रिक्वायरमेंट है हमारे बस के लिए. तो बेसिकली येलो में भी बहुत सारे डिफरेंशिएशंस आ जाते हैं, गोल्डन येलो, लेमन येलो,
अलग अलग शेड्स आ जाते हैं। अब उस शेड्स को कंपेयर कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, एक पेंट पैनल लेते हैं। एक पैनल होता है एल्यूमिनियम का, उस पे हम हर शेड का एक क्या बोलते हैं कोट करते हैं। उस पेंट जैसे बस के ऊपर जैसे कोट करते हैं, वैसे एल्यूमिनियम के पे भी कोट करते हैं, और ये दिखाते हैं कस्टमर पे कि सर ये देखिए, ये लेमन येलो है, ये गोल्डन येलो है, कौन सा आपका जो स्पेसिफिकेशन आप मैच कर रहे हो, उस हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। Great, thanks. You have answered my question to some extent. मैं इसमें अपने notes बना रहा हूँ, 1 second. जी जी। So a paint panel is an aluminium. A paint panel is made of aluminium. Aluminium, यस सर। and it showcases shades of a color कलर to the customer. टू द कस्टमर। ठीक है. सो मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ सर, थोड़ा और आपको वो हो जाएगा। हाँ. देखिए, दो तरीके के होते हैं सर। बेसिकली एक होता है कि कस्टमर हमसे मांगता है हमारे पेंट पैनल्स एग्जिस्टिंग के, और हम उससे मैच करा लेते हैं। एल्स हाँ. वो ये कहते हैं कि ये मेरा कलर है, और इसके अगेंस्ट में जो कलर आपका मैच हो रहा है, क्लोज टू इट, वेरी क्लोज टू इट, आप वो कलर हमें प्रोवाइड करिए या उस पैरामीटर से प्रोवाइड करिए। तो ये हाँ. अभी चलता आ रहा है कि पैनल टू पैनल हम लोग या इस प्रोजेक्ट में व्हाट वी आर थिंकिंग, हमारे जो एग्जिस्टिंग पैनल है, मतलब ये जो हम पैनल के थ्रू नहीं, हम उसका एक वीडियो टेस्टिमोनियल बनाएंगे, जिसमें उसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रही है, कहाँ कहाँ उसके सारे क्या बोलते हैं टॉप, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वो सब नहीं एक। नहीं, मुझे नहीं समझ आया, मैं आई लॉस्ट यू. ओके, क्या देखिए वीडियो बनाएंगे, किस चीज का वीडियो बनाएंगे? सर, द प्रोडक्ट जो पिच कर रहे हैं हम, बेसिकली अब जो। वो प्रोडक्ट तो हमारा पेंट है. हाँ जी। अब हम उसको पिच कर रहे हैं पैनल्स के थ्रू, प्री डिजाइन पैनल्स. जी अब हम वीडियो किस चीज पे बनाएंगे? सर, वीडियो अब हम बनाएंगे कि उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पिच कर रहे हैं, उसके क्या हाँ. एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या ग्लॉस लेवल्स, क्या पैरामीटर्स हैं, और कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ किस कस्टमर्स को जा रहा है, सो दैट जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके पास वो वीडियो चली जाए, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आगे भेज सके। और मोर ओवर, जो न्यू नहीं, हमारे कस्टमर्स कस्टमर्स कौन हैं? हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, और जो न्यू कस्टमर्स हम बनाएंगे थ्रू इंडस्ट्रियल। नहीं, मुझे समझ नहीं आया. मैं डाउनलोड आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे. देयर आर मेनी पैनल्स लाइक दिस एंड दीज आर स्टैंडर्ड पैनल्स, राइट? या स्टैंडर्ड पैनल। एंड कितने पैनल्स हैं ऐसे? सर ऐसे बहुत, मतलब न्यूमरस है। रैल्स में है, ये सीरीज में है। रैल सीरीज में जैसे 1000 सीरीज, 2000 सीरीज, 3000 सीरीज। और एक पैनल में कितने पेंट्स होते हैं? एक पैनल पे सर मतलब एक ही होता है सर पैनल। एक पेंट का एक पैनल, एक कलर नहीं नहीं, कोड। वन पैनल हैज वन कलर एंड हाउ मेनी शेड्स? सर शेड्स तो वही है, अलग अलग शेड्स है। नो लाइक काउंट, देयर इज नो काउंट इन दैट। नहीं नहीं, मैं समझ गया. अब मैं किसी को येलो कलर का पैनल दिखा रहा हूँ, जी, तो वो कितने टाइप के येलो दिखाएगा? 7 to 8 One panel has one color and 7 to 8 options to choose from. चूज फ्रॉम। अब आप वीडियो किस चीज पे बनाओगे? वीडियो में ये पैनल्स दिखाओगे? हाँ जी, वीडियो पे मतलब हम क्या करेंगे, तो हम लोग प्रोडक्ट के इसके एप्लीकेशन थ्रू वीडियो टेस्टिमोनियल्स को हम लोग प्रोडक्ट को नए कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है उन पर ले जाएंगे। नहीं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोडक्ट? ये तो पेंट ही है ना बस. हाँ सर, बट वेयर ऑल वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, जो एप्लीकेशंस उसके उस प्रोडक्ट के, मतलब बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग के एग्जिस्टिंग उसमें जा मतलब रहा कहाँ यूज होगा ये? ये तो है। पेंट सब करने में यूज होगा ना, बस एक ही जगह यूज होगा. सब बेसिकली एक्चुअली पेंट में भी हमने बहुत सा, एक बसेस का हो गया है, एक हाँ. अभी हमने नीचे नया स्टार्ट किया, वो स्विचेस पे, प्लास्टिक कोटेड स्विचेस पे भी है। तो बेसिकली
वो जो पेंट पैनल जो ये हम यूज, स्विचेस इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस हैं। हाँ सर, तो प्लस बसेस हो गए, स्विचेस हो गए, और क्या है? बसेस हो गए, स्विचेस हो गए, क्या बोलते हैं आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिक एरोस्टार्स लाइक के जो एरोस्टार्स हेलमेट, सर हेलमेट पे भी यूज हो रहा है। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट इसके जो यूजेस हैं, हम उसको क्या बोलते हैं अच्छा, एक एक वीडियो मिनट एक मिनट, अब मुझे यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ, हम ये वीडियो बना किसके लिए रहे हैं? बना हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो न्यू कस्टमर्स को हम दिखाएंगे, प्रोडक्ट पिच करेंगे उनके लिए, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक उसमें है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल्स में है। नहीं, तन्मय तन्मय, अब ये जो सेल्स होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होती है या डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हो? सर दोनों होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी होती है, डीलर्स पे भी होती है, और हमारे डायरेक्ट चैनल पार्टनर पे भी तो होती है। नहीं 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 नहीं, एक होता है डीलर्स। व्हाट इज अ डीलर एंड व्हाट इज अ चैनल पार्टनर, ये डिफाइन करोगे? सर डीलर ये है कि जैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उसमें कुछ डीलर्स भी हैं, कुछ डीलर्स हैं, और कुछ हैं जो प्रिमिटिवली अपना कंपनी चला, मतलब वन सिंगल हैंडेडली, वहां पे कोई बीच में वो नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग इट, मैं, मेरा दिमाग ना थोड़ा घूम गया है। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू सी मी yawning, बिकॉज माय माइंड इज आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एक है मेरा डीलर, जो ओके, मेरे से मेरा प्रोडक्ट खरीदता है और आगे कस्टमर को सप्लाई करता है। सप्लाई करता है। अब आप बोल रहे हो आपके डायरेक्ट कस्टमर्स भी हैं हाँ सर, डायरेक्ट कस्टमर्स भी, जो आपसे खरीदते हैं। हाँ डायरेक्टली, एक वो कैटेगरी हो गई, जी राइट? एक ये डायरेक्ट कस्टमर हो सकता है, एक स्कूल हो जिसके पास 50 बसेस हो। जी, बस ऐसे लोग भी आपके कस्टमर हो सकते हैं ना? हाँ सर, स्कूल हो गया, या मतलब जो आपने बाकी प्रोडक्ट लाइन दिखाई है, हाँ सर, क्या जैसे था वो, मैं आपको एग्जाम, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मतलब हॉस्पिटल भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट, आपका हाँ सर, कस्टमर। हाँ जैसे मैं आपको एग्जांपल भी ले लूं, जैसे हमारा स्वराज मजदा लिमिटेड है, वो हमारे बड़े ओईएम्स में आते हैं, वो सिंगल हैंडेडली कस्टमर्स हैं। आपका एसएमएल हो गया, सीता सिंह हो गया, और क्या बोलते हैं अशोक लेलैंड हो गया, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हैं अग्रवाल हो गए, अग्रवाल कलर सेंटर्स, जिन्होंने, जो दिल्ली में है अग्रवाल कलर सेंटर्स एंड ये डिफरेंट डीलर हो डिफरेंट, गया, ये डीलर हो गया। ये डीलर्स हो गए। अच्छा। तो हम जो सर पिच करेंगे, वो दोनों कैटेगरी में करेंगे। फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर हम पिच करेंगे कि अगर जो हमारे डीलर्स हैं उनको हम ये पिच करेंगे कि आप आगे दिखा रहे हो अपने, आगे जिस कस्टमर्स के साथ आप जुड़ना चाह रहे हो, वो वीडियो के थ्रू भी आप, मतलब वीडियो भी दिखा सकते हो, टू अट्रैक्ट, टू गेन मोर अटेंशन फॉर दैट प्रोडक्ट। बेसिकली सर आज के उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी हम लेते हैं, तो हम सबसे पहले ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके बारे में उसकी क्या यूजेस हैं, क्या फीडबैक्स हैं, कहाँ कहाँ ये यूज हुआ है। ये सारी चीज अभी तक यहाँ निपॉन में अभी हुई नहीं है बेसिकली। चलो इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, अशोक लेलैंड सोशल मीडिया पे जाके नहीं खरीदेगा। ओके, वो आपकी अवेयरनेस सोशल मीडिया से नहीं करेगा। ओके, एक डीलर आपकी अवेयरनेस सोशल मीडिया से नहीं करेगा। डीलर को तो आपका पता है कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओके अब वो कौन सी कैटेगरी का कस्टमर है जो सोशल मीडिया पे देख के आएगा? सर बेसिकली ऑटोमेटिक तन्मय, आप मेरी बात समझ गए ना मैं क्या हाँ बोल मैं, रहा हूँ? हाँ जी मैं समझ रहा हूँ। भाई अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स वो सोशल मीडिया देख के निपॉन के पास नहीं आएगा। जी जी जी, उनके तो अपने मार्केटिंग टीम है जो जानते हैं हमने किस कंपनी को यूज करना है अपने, या हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने, हमने अपना काम 3-4 कंपनीज को देना है। ऐसा होता जी होगा ना, आपका पेंटिंग का काम एक ही कंपनी पे कई लोगों से माल आता होगा। हाँ सर, तो बड़ी कंपनीज तो बाहर हो गई, जिसको हम से उनको नाम देते थे बिग कस्टमर्स, रियली बिग कस्टमर्स, की ओके अकाउंट्स, जी वो सर, बाहर हो गए। अब हो गए पेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कई टाइप के कस्टमर्स आते हैं, हाँ जी सर, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको आपके ये वीडियो दिखा सकते हैं, एम आई राइट? यस सर। और सर अभी मैं आपको एक एग्जांपल है, हमने एक वीडियो टेस्ट आउट किया है इस पे, जो रोबोटिक ट्रायल्स जेवीएम करा, एक जेवीएम हमारा कस्टमर है, बहुत आई बड़ा नो, कस्टमर आई नो जेबीएम, आई नो जेवीएम। जेबीएम, हाँ। तो बेसिकली वो रोबोटिक ट्रायल्स करा रही है, और उस रोबोटिक ट्रायल्स में जो पेंट यूज कर रही है, उस पेंट का हमने दिखाया है, उसका एक हमने वीडियो बनाया था।
उसके मतलब कि कहाँ वो एग्जिस्टिंग, और दैट दे कनेक्टेड विद अस विद दैट कलर, और वही कलर अब हम उनके रोबोटिक ट्रायल्स पे भी यूज कर रहे हैं। एक मिनट रुको, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये कैसे हुआ था? जैसे ये JBM है, जी ये सर। इन्होंने पैनल देख के सिलेक्ट किया था कलर? सर पहले तो ये था कि पैनल देखते हैं वो कि इट इज टच, इट इज मैचिंग आवर रिक्वायरमेंट। मोरोवर सर, कोई भी कस्टमर हम कनेक्ट करते हैं, बड़े कस्टमर्स को हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी पेंट कंपनी कनेक्ट करती है, तो सबसे हाँ, पहले तो वो ये जानना चाहती है कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इज दिस प्रोडक्ट वाइज इनफ, गुड इनफ इन दिस सोसाइटी, जो मैचेबल हो सके। जैसे अब आपका ग्रीन हो गया, डीटीसी, डीटीसी हमारा ग्रीन यूज करती है, ऑरेंज यूज करती है, ये सब विजिबल है, ये सारे डे टू डे पब्लिक उसमें विजिबल हो रहे हैं, दिल्ली पब्लिक और हर जगह, मतलब कि यहाँ के मतलब एनवायरनमेंट में। तो अगर हमें कुछ रेफरेंसेस लेना होता है टू गेन, टू गेन अ न्यू कस्टमर, तो हम सर ये फ्रेजेस यूज करते हैं कि ये ग्रीन, ये ऑरेंज, ये आप देख सकते हो डे टू डे उसमें, जो कि अभी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कोई ऐसे चीज नहीं हो रही है जिससे हम प्रेजेंट कर सके सर, प्रेजेंटेबल वे में नहीं है कि एक प्रेजेंट वे में एक ऐसी कोई भी सब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केटिंग यही करती है कि वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट विथ ऑल इट्स बेनिफिट्स, ऑल इट्स यूजेस, क्या नया है सोसाइटी में, क्या अलग है, बट वी डिड नॉट गो इन दैट हाई लेवल, एंड वी डिड नॉट नहीं, यूज। अब जैसे अपने कस्टमर को बता दिया कि भाई DTC हमारा ग्रीन और ऑरेंज यूज कर रही है, आप देख सकते हो DTC में जाके कैसा लगता है वो कलर। जी जी जी। यही है ना बस बात, और तो कुछ हाँ। नहीं है ना? नहीं अच्छा, नहीं तो कस्टमर्स के तो मोटिवेशन ये नहीं होते होंगे ना? कस्टमर का तो मोटिवेशन कॉस्ट होता होगा। सर, कॉस्ट भी होता है, मोर ओवर ये भी तो अगर मैं यूनिकनेस। बोलूं कॉस्ट और एस्थेटिक्स का क्या परसेंटेज होगा, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो? कॉस्ट का सर, एज इन एक्यूरेट तो मैं नहीं बताऊंगा, बट नहीं बता पाऊंगा अभी, बट 60-40 होगा, 60-40 होगा, 70-30 होगा, 80-20 होगा, कितना होगा? सर सिक्स, इट शुड बी 65-35। चलो ये मान के चल लेते हैं अभी, ठीक है। जी। दैट मीन्स एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं कस्टमर्स। मोर, एंड सर बेसिकली जस्ट गिव मी दिस, 1 minute। यस।
ओके तन्मय, जी सर। तो ये जो सोशल मीडिया अवेयरनेस आप बढ़ाना चाहते हो, इसके जी लिए आप कुछ वीडियोस बना रहे हो। स्टैंडर्ड जी पेंट पैनल्स के जो पहला वीडियो आपने बताया, आपने कुछ बनाया है, क्या आप जी। इसमें और भी वीडियोस बनाने वाले हो जिसमें पैनल्स और उनको कौन यूज कर रहा है वो इकट्ठे दिखाओगे, हाँ सर। इंटरव्यूज दिखाओगे, जी। हाउ पीपल आर सेटिस्फाइड विद द यूज हाउ ऑफ? यस सर। यस सर। बेसिकली क्या होगा कि अभी हमारी जो स्केलेबिलिटी है सर, वो सिर्फ B2B में चल रही है। मेन इट्स नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन टेकन फॉर शॉर्ट टर्म। This is when I joined Nippon, this project, this I took as in a long term. अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बेसिकली क्या करता है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली सोशल मीडिया पे निपॉन पेंट को अलाउ करता है कि टू एक वाइडर अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट बढ़े टुवर्ड्स द ऑडियंस with a wider audience group to increase our sales potential in every terms factor. ओके So basically अगर प्रोजेक्ट आउटकम देखें हम इसका मेनली जो हमारा प्रोजेक्ट आउटकम मेनली निकल रहा है वो होगा इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। सबसे बड़ी चीज कि एक क्या बोलते हैं प्रेजेंस बनेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और निपॉन पेंट्स कैन रीच टू अ वाइडर एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस अमॉन्ग पोटेंशियल कस्टमर्स, जो कि हर कोई करता है। हर कोई आज के उसमें सर सोशल मीडिया इज वेरी मेजर टूल टू आप मुझे प्रेजेंटेशन भिजवा देना अपनी श्योर सर। इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल। यस सर। श्योर सर। और engage with customer, showcase its products and services and keep up with ये मुझे समझ आ गया, और भी कोई स्लाइड है? वैल्यू एडिशन इज सबसे बड़ी वैल्यू क्या ऐड करती है सर इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे बड़ा तो मेरा यही था कि इट इज एबिलिटी टू कनेक्ट विद कस्टमर एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड सेल्स व्हिच वी डू। ये वेबसाइट ट्रैफिक कहाँ पे बढ़ा रहे हो? सर इन अ वुड जो हमारी एक सेक्टर है वुड 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 ट्रे वुड ट्रेड करके है। सो वहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में अमेजोन को यूज करके वी आर socializing our spray paints and every other small products. तो अभी इस प्रोडक्ट का B2C हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसका? ये जो आपका प्रोडक्ट है जिसके आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हो सोशल मीडिया पे, हाँ इज इट सेलिंग B2C और नॉट? हाँ सर, it is we are using it is but that is for different sectors sir. हमारा जो है मेनली जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज का है वहां पे ये कभी किसी ने ड्राइव नहीं किया क्योंकि हमेशा इस फील्ड मतलब इस सेक्टर में सब लोग ने B2B ही रखा। तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू टेक दिस चैलेंज एंड कंप्लीट टेक अ ओवरव्यू ऑन सोशल मीडिया आल्सो कि हाँ ये प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी और ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। नहीं तन्मय, मेरा भी इसमें आई एम नॉट क्लियर। कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पेंट तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, वो अपने 6-7 शेड्स निकालते हैं पेंट के। आर यू जी सेइंग वी आर कन्विंसिंग द कस्टमर टू रीपेंट द व्हीकल? सर मेनी कस्टमर्स आर देयर दोज हु जो रिपेयर्स के लिए भी आते हैं जो बेसिकली सर एम आई ऑडिबल? यस, नाउ यू आर। ओके। सो बेसिकली सर हम जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल लिया था अशोक लेलैंड का। तो अशोक लेलैंड में अब ये कि बसेस सर रिपेयर के लिए भी मोस्टली आती हैं, मतलब जब नहीं बनती हैं, नहीं बन के जब वो जो बसेस पुरानी है उनकी जो रीपेंट के लिए जाती हैं और जो रिपेयर्स के लिए आती हैं वो हमारे फिर से पेंट्स को वो करते हैं, यूज करते हैं।
पेंट्स को फिर उसमें सेकंड ट्रायल्स और थर्ड ट्रायल्स पे लेके जाते हैं। Okay, thank you. So basically, this is not for new sales. This is for customers who already have CEVs. Who has CVs, and as well as we will be getting connected to our new customers also, sir, which I believe, because अगर हमने नहीं तन्मय, हम CEV व्हीकल्स वालों की बात कर रहे हैं, हाँ, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल। उनके तो प्री डिजाइन कलर्स होते हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास। दैट मीन्स हम अपना माल तभी बेच सकते हैं अगर कोई उस पर कोई जॉब करवाने आता है या कोई रीपेंट करवाने आता है जी, या वन ऑफ दोस केसेस जो स्टाइल के लिए बोलता है मैं अपना पूरी गाड़ी दोबारा पेंट करवाऊं। फिर आपने बोला ये कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बसेस आती हैं या कार्स भी हैं? नहीं, बसेस हैं, बसेस हैं सब। बसेस, सिर्फ बसेस? नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, देन वी हैव टैंक्स, कुछ टैंक्स में भी हमारा जाता है। टैंक्स क्या होते हैं? आर्मी टैंक्स सर, वहां भी हमने अप्लाई किया है। फिर मोर ओवर द टेंडर्स, GSRTC टेंडर्स, जो अलग अलग स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट्स के टेंडर्स होते हैं, उन सारे टेंडर्स में जाते हैं। ओके, और अभी नया भी स्टार्टेड ऑन प्लास्टिक, वो एरोस्टार हेलमेट्स के लिए जाते हैं। अच्छा, आई हैव गॉट इट नाउ। तो हेलमेट्स पे भी कस्टमर चाहे तो रीपेंट करवा सकते हैं? हाँ सर। तो लोग करवाते हैं क्या? क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी को हेलमेट रीपेंट करवाते हुए। सर, एरोस्टार हेलमेट्स की कॉस्टिंग ही, उनकी हेलमेट्स 50-75,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। तो हम 1 लीटर, अगर मैं एग्जांपल हो तो हम उन्हें 1 लीटर का चार्ज करते हैं फॉर वन स्पेशल शेड, विच इज वन गोल्डन शेड। वी कॉस्ट देम अराउंड 6,000 रुपीज पर लीटर। तो सर और अगर कितने लीटर लगता है एक हेलमेट के लिए? एक हेलमेट पे अप्रोक्स सर 1.25 to 2। ओके, बेसिकली ये है कि अगर हमारा सही कस्टमर हमें मिल जाता है और प्रोडक्ट हमारा पिच हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग ऑल दिस फैक्टर, तो हमारी नॉर्मल सेल्स जो पिच हम करते हैं, हमारी जो नॉर्मल टॉप कोट की शेड्स हम मार्केट में कस्टमर्स को हम देते हैं, दैट इज आर बिटवीन 500 to 800 रुपीज तो पर लीटर। if the customer satisfies and looking at all these parameters, हम उसे satisfied out कर लेते हैं और 100 लीटर्स की भी हम सेल करते हैं, तो स्ट्रेट अवे हमारी 60,000 to 70,000 की सेल हो जाती। नहीं ये मैं समझा नहीं, एक हेलमेट पे कितने रुपए का पेंट लगता है? सर, एक हेलमेट पे पूरा अगर निकाले कॉस्टिंग हमारी, जैसे हेलमेट की नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बस की बता देता हूँ, क्योंकि वी बस की बहुत ज्यादा हम लोग, तो एक एवरेज बस पे हमारा 18 से 20 हजार का पेंट लगता है। एवरेज 18 से 20 हजार का हम अगर कोटेशन देते हैं बस का, और उसे 50 बसेस बनानी है। अब उसमें से जो हम प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहे हैं, मैं जैसे देखिए बस को पेंट करने के लिए बहुत अलग अलग, मतलब मेरे ही उसमें थिनर लग रहा है, हार्डनर लग रहा है, अल्टीमा टॉफिर टॉप कोट लग रहा है। तो बेसिकली मैंने अभी फोकस किया टॉप कोट पे। तो टॉप कोट का आइटम अगर मैं लेके चलूँ तो एक बस पे अगर 6 से 7 हजार रुपए का आइटम लग रहा है मेरा टॉप कोट का, और ऐसे वो 100 बसेस कर रहा है, तो 60-70 हजार तो ऐसे ही निकल गए सर मेरे। I got it. Yes, So, yes. so the thing is, sir, what my aim was, मैं एकदम शॉर्ट में आपको, बाकी तो आप पूरे प्रोजेक्ट में मुझे पता है कि बहुत ज्यादा आपके गाइडेंस के थ्रू ही वी विल बी मेकिंग दिस प्रोजेक्ट अ बिगर वन। बट नॉर्मल व्हाट माय विजन वाज कि अभी तक जितना भी हमारा बिजनेस चल रहा है, सारे बिजनेसेस, मतलब अगर मेरी कमर्शियल इलेक्ट्रिक बस वो ये कह रही है कि भाई ये मेरा पैनल है,
ये मेरा स्टैंडर्ड वो है, मैच कर लो, अगर तुम सेटिस्फाई हो जाते हो और अगर सब रहा तो हम यू विल टेक माई प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्या है, ऑडियंस यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1-to-1 बात है, 1-to-1 मेरी कंज्यूमर कनेक्टिविटी है। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो 1-to-1 है इसको मैं एक्सपैंड कर दूं एवरीवेयर, भले वो मेरे ऑडियंस को पहुंचे एट द एंड जो मुझे पोटेंशियल वो मिले या नहीं, बट उसमें से सर मुझे अगर 1-2 कस्टमर भी रीच आउट हो जाते हैं, और ये रीच आउट मैं सोशल मीडिया पे कैसे करूंगा, इसके लिए भी सर द नेक्स्ट विच मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं समझ गया, आप इस कॉन्सेप्ट को बिलो द लाइन से अबव द लाइन ले जाना चाहते हो, कि 1-to-1 से 1-to-many ले करना चाहते हो हाँ एडवर्टाइजिंग। कि सर बेसिकली क्या होता है कि अब सोशल मीडिया ने जब सोशल मीडिया का जो कैंपेन हम रन करते हैं, बेसिकली वो भी सेक्टर्स डिसाइडेड हो गए। तो अगर हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उस सेक्टर में रन करवाते हैं हमारा एड, तो जैसे जो ऑटोमेटिव के टॉप 10 है, वो ऑटोमेटिव के ऑडियंस होते हैं सर उनके पास। बेसिक जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, जैसे वो अगर मैं इंस्टाग्राम पे देखूं तो सर इवन आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सम ऑफ द ब्रांड्स, not for this brand but some of the brand which I was associated with in past। ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर हमारी टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट आउट कर देते हैं और एक दो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की हमें रीच मिल जाती है, which takes our product of 200-300 लीटर, which एवरेज कॉस्ट पे अगर हमारा 500 रुपीज हुआ उस लीटर का, तो सर 50,000 to 60,000 तो सेल होगी। पर तन्मय, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, जी पेंट वाले कस्टमर्स को कैसे पकड़ोगे यार? सोशल मीडिया कैंपेन आपने बना दिया, मैं देख रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छे से डिवाइड करा, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, आप पेंट वाले कस्टमर को कैसे पकड़ोगे? सब पेंट वाले कस्टमर्स की भाई साहब, बेसिकली ये वो बोलते हैं ना, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात है ये। हाँ सर ये तो है, बट यू एग्री विद मी और नॉट? आई मतलब नो मैं तब से यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। Fine, I am completely okay with your social media plan that you spend the 500 USD on, splitting it between social media, creating high quality content, collaborate with influencers. sir it And is possession. difficult sir, but I know it is very difficult, but if sir वही है सर, तब मतलब as to be very frank सर, कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं इन आउट ऑफ लाइक, अगर हुंडई ने भी अपनी गाड़ी जब आपने अगर हुंडई का पढ़ा होगा तो हुंडई ने भी जब स्टार्ट किया था सर, तो तब भी कुछ नहीं था सर, मतलब जब एडवर्टाइज स्टार्ट की थी। और नहीं नहीं, तन्मय इसके बाद आपकी 1-on-1 होनी है शरद जी से। अच्छा जी, तो उन्होंने भी आपसे यही पॉइंटेड सवाल पूछने हैं कि चलो आपने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, सब जगह कर दिया, नाउ हाउ आर यू इंश्योरिंग कि ये उनके पास जाए? मैं ये बात मानता हूं कि कोई बाइकर है जो अपने हेलमेट को ठीक करना चाहता है, उसकी टक्कर हो गई थी कहीं, हेलमेट का पेंट चला गया, वो आ गया। जी सर, बस वाले जो हैं, वो तो कोटेशंस मंगवाएंगे, राइट? जी सर, आई एम श्योर ये जो बस वाला है, ये भाई आपका कोई कैंपेन देख के नहीं आएगा। यस चांसेस आर वेरी वेरी लो। और या एक चीज हो सकती है, अगर आप लार्ज अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जो हम डेल में करते थे कि ये कस्टमर ने, अच्छा एक और बात, चैनल क्या है, हाउ विल द कस्टमर फ्लो, मतलब एक सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट बन के कस्टमर कैसे बनेगा? सोशल मीडिया में कॉल टू एक्शन क्या डाल रहे हो? सोशल मीडिया में क्वेरीज का वो रहेगा सर, क्वेरीज ऑप्शंस रहेंगे। वही कॉल टू एक्शन, वही बोल रहा हूँ, क्या प्रोसीजर होगा? विल कस्टमर रिवर्ट बैक विद हिज नंबर कि गेट इन टच विद मी, या नंबर, मेल आईडी, आपका अच्छा नंबर और मेल आईडी। और मोर ओवर सर हमारा बेसिकली अभी आपके पास है कुछ नंबर्स और मेल आईडीज? रिगार्डिंग सर, ये प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है? आपने कुछ किया है क्या अभी तक? नहीं सर, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस।
हाँ, तो आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर मैंने देखा है, लोग ये सोचते रहे 3 महीने हैं, 3 महीने खत्म हो गए, दे वर नॉन स्टार्टर्स। जी जी सर। तो अब और आपने ये प्रेजेंटेशन मुझे भिजवानी है। अभी इसमें और कितनी स्लाइड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन में? बस सर ये मेरी टीम है, ये कनेक्टेड basically जो मेरे से moreover sir, this is for moreover a new for our this project is for my existing customer also who are using my project, ताकि अगर उनका 200 लीटर्स का डिलीवरेबल है पर मंथ, तो वीडियो एंड एवरीथिंग दैट शूट अप्स टू 400-500 लीटर। मेरी कोशिश ये भी रही मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हाउ मेनी कस्टमर्स डू यू हैव राइट नाउ? Right now I am having sir almost in CV we have 30 to 35 existing who is taking. So One second, this is an important data. So you plan to sell through farming also? yes sir. Through farming to 30 to 35 customers, Yes sir. and through hunting to New customers. retail customers on social media. Yes sir. So sir there will be like what I have thought कि there will be I will be getting two options. एक ये होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मुझे पिच जो चल रहा है उसको और वैसे पिच करके, सो दैट जो मेरी नॉर्मल अभी लाइन चल रही है 200 लीटर की गेट इंक्रीज टू 400 लीटर विद द हेल्प ऑफ। नहीं समझ आया मेरे को। How will you do it? Now you are talking about existing customers. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में सर What is a line of 200 liters? इसका क्या मतलब है? lines are basically the requirement of that customer. If he is having 200 liters of the like if we take a PU golden yellow, उसकी रिक्वायरमेंट SML की है महीने की 1000 लीटर। चलो मैं वो कस्टमर हूँ, आप मुझे और कैसे बेचोगे अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत? और कैसे मतलब अच्छा मतलब आप मेरे पास अपना पेंट बोर्ड लेके आ गए, फिर क्या करोगे? सब बेसिकली जैसे अगर आप डीलर हुए तो अगर डीलर हो तो मैं आपको जो बनाया है, मैंने जो पिच प्रोडक्ट बनाई है उसको मैं ये कहूंगा कि भाई आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितने भी तुम कनेक्टेड हो उन्हें शेयर करो, ताकि अगर वो कनेक्ट आउट होता है और उनकी प्रोडक्ट मतलब उनकी अगर लाइन इंक्रीज होती है, इस प्रोडक्ट की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो आर यू सेइंग कि आपके डीलर्स के सब डीलर्स भी हैं? हाँ, डीलर्स के आगे भी हैं जो। तो ये जो आप बेचने का सोच रहे हो, सिंस आवर होल कॉन्सेप्ट इज सोशल मीडिया, तो ये आप वीडियो मार्केटिंग भी करोगे, उनको वीडियोस भिजवाओगे वीडियोस और उनको बोलोगे आप ये वीडियोस आगे भिजवा दो अपने नेटवर्क में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नेटवर्क्स में उनको। है, टीम में है, और अगर वो कोई भी प्रोडक्ट पिच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसमें सर सबसे बड़ी और मेरी जो सपोर्ट है वो है मिस्टर अभिषेक मुदगल, जो मैंने आपको बताया था, इज टेकिंग केयर ऑफ एंटायरली नॉर्थ रीजन फॉर हिज कस्टमर, जिनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है उनके कस्टमर पे ऑन ग्राउंड लेवल पे। तो क्या उनके पास कोई ईमेल लिस्ट है? व्हाट्सएप, कैन यू मेक क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर टेकिंग डेटा फ्रॉम हिम? या आई कैन आस्क, आई कैन बिकॉज हम डिजिटल अच्छा, एक तो अपने प्रोजेक्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ड यूज करना बंद कर दो, वर्ड को रिप्लेस कर दो डिजिटल मार्केटिंग से। ओके सर। ताकि सोशल मीडिया भी इसमें आ जाए, इसमें ईमेल मार्केटिंग भी आ जाए, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आ जाए। आप समझ गए मेरी बात? जी सर। तो सोशल मीडिया वर्ड काट दो, डिजिटल मार्केटिंग कर दो, ओके और सर। इसमें SMS मार्केटिंग भी आ जाए। ओके सर। तो इसमें कम्युनिकेशन का मैसेज क्या जाएगा कस्टमर को? जस्ट अ मिनट सर, मैं एक चीज लिख रहा हूँ बस। हाँ हाँ जी सर बताइए। क्या क्या कह रहे हैं आप? कस्टमर को मैसेज क्या जाएगा? सपोज मैं बैठा हूं, मैं अपना व्हाट्सएप देख रहा हूं या मैं अपना इंस्टा पे काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या मैसेज पॉपअप करेगा? सर एज अ मैसेज, एज अ जैसे वीडियो, जैसे आप रील्स देखते हो। मैंने समझ गया। पंच लाइन क्या होगी कि मेरे को मतलब अच्छी लगे? पंच लाइन तो सर
we have to think. मतलब जैसे होगा confused about repainting your electric vehicle. Vehicle, not sure about the uh, कुछ ऐसी So टैगलाइन तो होगी what सर क्या? what benefits of our paint will you highlight? Its uniqueness. एक मिनट, ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं जो बनाता जा रहा हूँ कुछ सवाल, जी सर. पर ये तन्मय डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है ये. अब पैसे कैसे कमाओगे इससे? सब द थिंग इज लाइक अगर मेरा कस्टमर मतलब यही है कि if we get connect to a customer, if we make any customer or if we get connect to our any existing customer with new ज्यादा जो ले उस प्रोडक्ट का, तो बेसिकली हाँ, बट आप ये बोल रहे हो प्रेजेंटेशन विल स्ट्रिक्टली बी थ्रू अ वीडियो, और ओके इट विल बी थ्रू अ वीडियो ओनली. आप वीडियो मैनुअली कुछ पिच नहीं करोगे, देन इट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, इट इज 1-to-1. पैनल मीन्स नहीं सर, बेसिकली अगर नहीं, वीडियो अगर उस प्रोडक्ट के बारे में हम वीडियो टेस्टिमोनियल के थ्रू पिच करते हैं तो वो तो क्या बोलते हैं, अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है सर, कोई भी प्रोडक्ट अगर कुछ लॉन्च होता है, जैसे अगर हम अमेजोन पे ले लें, वो प्रोडक्ट के बारे में अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ इमेजेस देते थे, इमेजेस नहीं, ही. मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आर यू प्लानिंग टू, जैसे आपके कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स होंगे एग्जिस्टिंग, जी राइट, कुछ आपके नए होंगे जिनको आप हंट करना चाहते हो, जी सिमिलरली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होगी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे ये भी आपको पता होगा उनका सब डिस्ट्रीब्यूटर पोटेंशियल कितना है. जी. एक मिनट रुको, आई एम नोटिंग इट डाउन. डिस्ट्रीब्यूटर एंड सब डिस्ट्रीब्यूटर पोटेंशियल. ठीक है, तो ये हो गया. और इसमें हम जो ये मैं बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, इनके 3 टाइप के हमारे कस्टमर्स हो गए. एक तो हमने अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भिजवा दिया जी. थ्रू ईमेल, और एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये थ्रू मेल ही हो सकता है या थ्रू व्हाट्सएप हो सकता है. थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप. हाँ, और कौन सा सोशल मीडिया चैनल यूज करोगे, क्योंकि मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रहा. सब मेनली हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक तो कनेक्टेड आउट है, तो ये हमारा तो मेजर रहेगा. एंड लिंक्डइन विल बी प्रिमिटिवली अनदर सोशल मीडिया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हमारे अभी मतलब कनेक्टेड आउट हैं, वहां पे रेफरेंसेस लिंक्डइन में ज्यादा वी कैन गेट इट. हाउ विल द रेफरल वर्क? डिस्ट्रीब्यूटर से जो आएगी वो तो लीड होगी, रेफरल नहीं होगा. हाँ, एग्जिस्टिंग कस्टमर से हो सकता है रेफरल्स आ जाए. तो डू वी हैव अ फॉर्म और डू वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म जो हम उनसे लेके उन्हें रेफरल्स मांग रहे हैं? अभी तो नहीं है सर. ओके.
ओके, सोशल मीडिया वो आप टूल्स कौन कौन से बनाओगे? एक तो वीडियोस है, और कौन सा टूल भिजवाओगे कस्टमर को? सर आज प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट में मतलब क्या बोलते हैं हाँ, उस कितने टाइप के वीडियोस बनेंगे? एक एंडोर्समेंट वीडियो हो गया, और कौन सा हो गया? बेसिकली सर एक उसका एप्लीकेशन वीडियो है एप्लीकेशन वीडियो क्या होता है? कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है अभी। और क्या वीडियोस हैं? एक हो गया एंडोर्समेंट वीडियोस, एक हो गया ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और एक इसका क्या क्या यूनिकनेस है मतलब पैरामीटर्स है। अच्छा, एक प्रोडक्ट वीडियो ही हो गया, हाँ। वीडियो ऑन बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यस। डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? डेटा कितना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का? क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा है? सर डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो है बट सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो वी डोंट हैव व्हिच वी नीड वी विल अच्छा, बी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने मेल डाली अपने सारे लोगों को, तो उनका रिस्पांस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा? हाँ जी। ठीक है। अब जो रिटेल का कस्टमर है वो कैसे आएगा, जो डायरेक्ट कस्टमर है? एक तो आप अपने 35 कस्टमर के पास चले गए, आपने रेफरल्स ले लिए, पर इन 35 के अलावा बाकी कितने कस्टमर्स हैं? इनमें कुछ टीयर 2 कस्टमर्स होंगे जो सबसे बड़े वाले कस्टमर से थोड़े से छोटे होंगे। छोटे होंगे। हाँ, तो हाँ ओवरऑल कस्टमर बेस कितना है? सर ओवरऑल तो जो अगर नॉन एक्टिव को भी मैं मिला दूं तो वो मोर देन 200 300 है। बस मतलब इंक्लूडिंग दीज 30 35? यस। 300। इनमें से आप कितने लोगों को कन्वर्ट करने की सोच रहे हो? सब पिच तो हर में पिच तो हर में होगी। पिचिंग मेथड्स क्या हैं? सपोज करो आपके कस्टमर को आपने एक ईमेल डाला, जी। उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, प्लीज गेट इन टच विद मी। सो सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट और अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग स्टेट जो हमारी है चल रही है वो पैरामीटर चेक करेंगे। ये मैं समझा नहीं। अ, आपने आपको किसी ने बोला भाई मेरे को कांटेक्ट करो, आप क्या करोगे? उसको उसके पास जाके उसको सीधा पूछोगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिकली तो सर पहले तो हाँ उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानूंगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या कौन सा ऐसा शेड है जो प्रिमिटिवली उन्हें चाहिए। सो यू विल डू कंसल्टेटिव सेलिंग। हाँ। और फिर उसके अगेंस्ट में हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है हाँ, उसका। नहीं वो मैं वो समझ गया। यू विल फॉलो द स्टैंडर्ड सेल्स रूल, प्री कॉल प्रिपरेशन, प्रोबिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग एंड आस्किंग फॉर द बिजनेस, राइट? यही टूल्स आप यूज करोगे? जी जी। ठीक है। अब एक तो हो गया डेटाबेस, 3 लेवल पे डेटाबेस हो गया, फिर आपने ये भिजवा दिया, और आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वीडियो मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं सोशल मीडिया एंड के। सर वी विल बी गोइंग ऑन टेलीग्राम आल्सो क्योंकि टेलीग्राम पे भी बहुत मेजरली ग्रुप्स हैं। नहीं, तो आपने एंडोर्समेंट वीडियोस डाल दिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, लिंक्डइन। जी। आप बोलो टेलीग्राम, ये तो मैंने मान लिया। और उस पे आपने वो लगा दिया दैट इफ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट हियर। यस। उसको कौन मॉनिटर करेगा? हु विल मॉनिटर द लीड्स? विल यू मॉनिटर द यस लीड्स? आई विल ओनली मूव। So how many leads are you expecting in the next 3 months with your efforts? So as much as many as I can मतलब कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जनरेट करूं बट। अरे बाबा, आपने जितना रेवेन्यू निकालना है इस प्रोजेक्ट से, उस हिसाब से आपने कितने लोग सोचा है? मतलब कितने सर लीड जनरेट करोगे? सर रेवेन्यू अगर $1600 को देखा जाए तो मेरे लिए तो अगर कोई अगर मेरा प्राइमेटिवली 5-6 भी मुझे अगर मिल जाए जो कि हाँ। जो कि मेरा ले ले 100-200 लीटर्स तो मेरी सेल्स निकल जाएगी। अच्छा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आज बाय एंड ऑफ द डे आप मुझे एक प्लान बताओ कि आप कितने कस्टमर्स को टारगेट करोगे, उसमें से कितने आप वो करोगे, पाइपलाइन में लाओगे,
और उस पाइपलाइन से कितने कस्टमर्स बाय करेंगे और ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी आप टारगेट करें। ये सारा डेटा आपके एलएमएस पे चला जाएगा कल तक। ओके, कस्टमर टारगेट, कस्टमर पाइपलाइन। सो तन्मय, अभी एम्बिग्विटी है आपके ना बातचीत में, यू आर नॉट वेरी क्लियर। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला था, वो तो फिट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, सोशल मीडिया फिट नहीं हो रहा, बिकॉज सोशल मीडिया से इस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना वेग है। अगर आपका कोई स्प्रे पेंट होता ना होम यूज के लिए, फॉर किड्स टू मेक पेंटिंग एंड ऑल, तब तो ये तरीका ठीक था, अप्रोच द मासेस थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन। पर इसमें आप ये कर सकते हो दैट आप वीडियो भिजवा दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भिजवाएं, अपने की कस्टमर्स को भिजवा दो, मे बी उनके साथ जाके बात भी कर लो, उनसे थोड़े वर्ड ऑफ माउथ से रेफरेंस ले लो। और आपको कोई और तरीका दिखाई दे रहा है इसके अलावा? अभी तो एक्चुअली सर इतना कुछ चल रहा है दिमाग में कि थोड़ा सा इट इज लाइक फर्स्ट वन टू वन, सो थोड़ा सा मुझे वो है, बट या But did this one-on-one help you in any yes way? definitely it has all enhances the thinking capability. Moreover the best thing is like अब पता चल रहा है कि क्या क्या हमारे challenges हैं, क्या क्या हमारे problems face out हैं, तो mainly we have to work on those things. And हाँ, मतलब मैं थोड़ा वो हूँ, मतलब मुझे लग रहा है इसमें जितना हमें रेवेन्यू करना है वो करना है, इट्स अ चैलेंज। मतलब हाँ ये हमारे लिए अच्छा खासा चैलेंज रहेगा। हाँ जी सर, आपको क्या कस्टमर टारगेट नंबर्स में चाहिए आपको? हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ, जी भाई लुक, माय पॉइंट इज टू बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेनर एंड टू मेक यू सक्सेसफुल इन दिस। जी सर। वो तभी, मतलब वी कैन नॉट मीट आवर ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो ही मेरा पूरा होगा, जी सर। और अगर मेरा पूरा हुआ तो आपका भी हो जाएगा। जी, बट सर आपको नहीं लगता कि ये काफी ही लाइक अगर हम मतलब व्हाट आई फील कि अगर हम एक स्टेबल कस्टमर को कनेक्ट आउट कर जाते हैं अगर इस प्रोजेक्ट के थ्रू, हाँ और he takes a lavishly of 400-500 liters of material from us, which gives the costing of like 400-500 rupees per liter, जो कि मुश्किल है। दिस इज वेरी लाइक वही है कि सुई निकालना, बट अगर हमारा एक भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारा अच्छा बन जाता है तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बट उसमें फिर ये मैं देखूंगा कि क्या ये कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट से आया है। अगर नहीं आया, अगर डायरेक्ट आया, तो देन तो इट्स अ नॉर्मल सेल्स ना, इट्स नॉट थ्रू द प्रोजेक्ट। थ्रू द प्रोजेक्ट। सो मैं क्या चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपना वो बनाओ डीलर डेटा, कितनों को आपका मैसेज जाएगा, किस किस टाइप के वीडियोस आप लिख लो ये, क्योंकि आपने मुझे भिजवाना है अभी मैसेज करके, दैट after the meeting I'm just jotting down what all things you want from me. So first I want your distributor data and your key account customer data, and then I want the data of your other 260 customers. आपने बोला ना 300 कस्टमर है आपके टोटल, जी तो बाकी कस्टमर्स का भी डेटा मुझे चाहिए। ओके। ठीक है, ये डेटा अगर आ गया तो आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके हिसाब से? सर मतलब मैं आपको बता दूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं मुझे भी हाँ, तो इसे डाल देना हमारी रिपोर्ट में, मतलब इस वन ऑन वन की जिस्ट में, दैट यू आई नीड द, क्योंकि आपका मेन चैनल तो वही है, अलग अलग वीडियोस बना के उनको भिजवाना, जी यू नो। और यू कैन रीच हेलमेट वाले जो कस्टमर्स हैं, दो स्ट्रेटजीज बना लो। अच्छा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वालों को कहाँ पकड़ोगे? सर वो एक बार मैं सेल्स पर्सन जो हैं जिनके साथ कनेक्ट आउट करता हूँ मैं, आपको मैं सर ये डाटा कल तक दूं तो कोई इशू है? भाई आपके 3 कस्टमर्स हैं, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉमर्शियल है, दूसरा हेलमेट्स, जी
राइट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल, जैसा कि आपने मुझे बताया। ओके आप मुझे तीनों को अप्रोच करने का एक प्लान बता दो। एक तो अप्रोच कितने को करोगे, एक किस टूल को लेके अप्रोच करोगे, एक अगर क्वेरीज आएंगे तो लूप क्लोज कैसे करोगे। बस ये मुझे आपने लिख के भिजवाना। ओके आप समझ गए ना, मतलब एम आई मिसिंग एनीथिंग? सर बट बेसिकली जो एरोस्टार मैंने हेलमेट्स की बात की है, वो हमें अभी रिसेंटली हमारी बस एक कस्टमर कनेक्ट आउट हुआ है। मेनली तो हमारे जितने डीलर्स हैं वो कमर्शियल्स के ही हैं। तो बेसिकली आपको मैं कमर्शियल्स के दे, क्योंकि मेरा जो मेन वो है, जो मेरा मेन सेक्टर है वो कमर्शियल ही है। नहीं, मैं समझ गया। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो वो सारे कमर्शियल के ही हैं, सारे हाँ कमर्शियल व्हीकल्स के ही हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मैं आपको ये करता हूँ, मेरे जितने कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसका आपको एक नंबर बताता हूँ जिससे हम कनेक्ट करेंगे। और हम कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या तरीका है वीडियो का, कितने टाइप्स के वीडियो वो करेंगे, और अगर उनकी क्वेरीज आती है हमें तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको उस बात को कैसे आगे ले जाएंगे। अच्छा। आपका, आप इनको कैसे यूज करोगे? कोई ट्रेनी लेना चाहते हो? किससे सर? किससे? कोई ट्रेनी लेना चाहते हो कोई? अभी तो सब। आप दिल्ली में हो ना? अगर मैं हाँ आपको जी। बोलूं 10 ट्रेनीज ले लो 500-500 रुपए पे, ओके और उनको एक एक डीलर पे बिठा दो। ओके कोई भी कस्टमर आता है उसको वीडियोस दिखा दे, वो जाके, सर आई थिंक आई हैव द एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ओके डू यू थिंक दैट विल वर्क? यस दैट that can work At sir. least that can get you the revenue from the project, जी सर। right? When can I need to know from you the number of videos that you plan to use, the concept behind the videos, and the target date when the videos would be ready. And the target date cannot be beyond 30th here. Let's have the videos ready. Let's have the trainees ready. Let's have hire about 10 trainees. Okay They'll be at the, and put them in your key dealer outlets. कोई भी पार्ट आता है उसके लिए, कोई भी बॉडी पार्ट आता है पेंटिंग के लिए, let your people be there, see the color of the part and suggest a similar color from your video. Does that make sense? okay sir. That is my suggestion. Immediately hire 5 to 10 trainees. Okay Okay. Shoot out all this just to me by end of the day, and we'll take it forward from there. Project doable है। ये वाला चैनल है ना, ट्रेनीज वहां पे रहेंगे, रिपोर्ट करेंगे कितने कस्टमर्स को अप्रोच किया, कितनों जी को एक्चुअली कन्वर्ट कर लिया। तो हो सकता है इससे अगर हर ट्रेनी 5-6 कस्टमर्स भी कर लेता है तो आपका पर ऑन एन एवरेज कितना आ जाता है एक कस्टमर से? अगर वही सर ये है कि क्वांटिटी ऑफ लीटर पे है। आपको कितने पैसों का सेल करना है? एक मिनट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर पे। 1600 into 80। तो ये है 1,28,000। जी सर। ऑन एन एवरेज आपका एक कस्टमर कितना पेंट लेता है, मतलब कितना रेवेन्यू है आपका एक कस्टमर से? सर 100 लीटर अगर मंथ में लेता है तो 100 into 500 रुपीज 50,000। सो दैट मीन आपको सिर्फ 3 कस्टमर्स चाहिए। सर अगर मुझे एक कस्टमर लीड भी मिल गया तो एक मेरा इस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू निकल जाएगा। बस वही है कि उस कस्टमर को वो लीड करना, फॉर विच आई एम हैविंग डे बाय डे डिस्कशन विद माय सेल्स पर्सन, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड है और वो और मैं अलग अलग जगह ट्रायल्स वगैरह पे जाते भी हैं। बट अब ये जो रेगुलर विजिटिंग है उनके जो डिफरेंट डिफरेंट वो डीलर्स पे और हमारे जो डिफरेंट एग्जिस्टिंग है, बस मुझे ये है कि सब वीडियोस का डेट आपने मुझे ये 30 मई दिया है। So with that will be quite bit challenging for me because नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो मैंने ऐसे ही आपको दिया एक डेट, क्योंकि हाँ मेरे को पिछले साल का तजुर्बा है।
Yours is a tough project, yeah. So You know, सर हमारा मेन ये कि अभी मैं जो सेल्स पर्सन है जो जिनके साथ मैं कनेक्ट आउट हूँ उनके साथ भी मैं जाता हूँ अलग अलग ट्रायल्स पे और वहाँ Tanmay, I will not accept any sale which is because of your व्यवहार. that will be not done. That मैंने आपको वीडियो इसलिए बनाने के लिए पूछा है, एक बार आप वीडियो बना के सबको भिजवा देते हो, then you can quantify a sale from a video. Sure. पर अगर आपके वीडियो ही नहीं बने तो हर सेल आपकी फिजिकल चैनल से आ रही है, इट्स नॉट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग. Sure. तो फटाफट 3-4 वीडियो बना के सारे डीलर्स की लिस्ट बनाओ, कस्टमर्स के बड़े कस्टमर्स की लिस्ट बनाओ, छोटे कस्टमर्स की लिस्ट बनाओ, फटाफट ये वीडियो भिजवा दो, ट्रेनिंग हायर करके लगा दो. जी. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 1,25,000 के बजाय आप 50 लाख कर लोगे. पर अगर आपने इसमें सक्सेसफुल होना है तो पहले ही अपने वीडियोस का कॉन्सेप्ट सोच लो, मार्केटिंग से बात करो, 5-6 वीडियोस बना लो. जी सर. फेयर है. श्योर. बाकी जो मैं फाइनल नोट्स बना के आपके उसमें डालूंगा, आप मेरे को एक तो ये प्रेजेंटेशन भिजवा दो और एक अपना जिस्ट भिजवा दो जो मैंने आपको बनाने जो मैंने आपको देने के लिए बोला है. हाँ सर, आपको बेसिकली मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के ये मेल मेरे को कब दे दोगे आप? सर मैं कल, ये प्रेजेंटेशन तो अभी मैं आपको दे दे रहा हूँ. हाँ, ये मेल भी मुझे रात तक दे दो. सर ये मैं कल दूं आपको? मैं पता है तन्मय, कल 2 लोग और आ जाएंगे तो मैं उनके डेटा में खो जाऊंगा. ओके, तो सर ठीक है, तो मैं जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके डाटा आपको देता हूँ. आपको नंबर्स नहीं, वो नंबर्स आप मुझे कल दे दो. नंबर्स तो मुझे तब चाहिए जब आपका वीडियोस बन जाते हैं. तो ठीक है जी. आज मुझे आप सिर्फ जिस्ट दे दो जो क्या क्या हमारी डिस्कशन हुई और अपनी ये प्रेजेंटेशन दे दो. ठीक है. ओके. ओके. थैंक यू, प्लेजर स्पीकिंग विद यू. थैंक आई यू विल सर. बी इंटरैक्टिंग मोर विद यू. थैंक यू सर. अपना वो स्क्रीन, हाँ मैं एंड कर रहा हूँ, एंड आई विल बी सेंडिंग यू अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कॉल. श्योर सर. थैंक बाय, यू. सी यू, बाय बाय.